me share the screen. Entire screen, screen 1. Okay, is screen visible? Yes, sir. Okay. Let me give you the glimpse of this. Was the last time we are doing this project. This is what we do in after the session of HTML and CSS a little bit. Uh, this is what we're talking about. Like we have the header file here, header area, and we also have some kind of button which will go from the night stuff to the day. As you can see, when it's a day, there's a moon coming up here, crescent, and if it's a night, there's a sun coming up, and then there are these menus, right? You hover on them, then they have a lot of animations going on that, and here you see the animation again. Then there are some buttons with the button animation, the different button animations we had. This is not a portfolio website. It's just for teaching things, but we had different buttons with the different animations, and then we have these logos. And if you go to the next section, to the about, it goes scrolls down, then again some animation comes up, and there are tons of things we have done. This is to show application of CSS and HTML. Then we go to the skills. Now you see there's something moving around, the text is in it, and then on a background something happening, the picture is kind of floating in it. So there are some animations of these which I'm showing here. This is only for the teaching purposes. This is not we were doing the things. Then we have the projects, what projects we have done, full of animations and everything done by the CSS, plain CSS and HTML, like the contact form where we have these things, you know, the logos, the icons are coming up, and then there are the footer section. This is the footer section we developed. Okay, it doesn't look like an odd footer section, it looks a nice footer section, right? And then there's always a top button where you can go to the top. Okay, so this is what you will accomplish. You will learn these tools, how to do all this with just CSS and HTML. So that's what we are trying to do now. Okay, where is my VS Code? Okay, now we come back to our project. It's not clicking. Open reset, and we got the semantics. Okay, we were talking about now the semantic tag, right? Yesterday we were here. So any issues in this code, you can tell me, because we are going from the beginning, we're going absolute zero. So if you have any issues, you can tell me. So in the meantime, if you have, I will just recap a bit. That we said we created the firstly the in the style folder, we created the style.css, okay, and we linked this CSS file with our HTML in index.html using the link. Okay, like here we can say link colon CSS, enter, and it will give me this is style sheet. And where is it? This is in a folder. The name of the folder is style, right? So I have to write that style. Just put up S, and it's giving you. Then it's giving you there in that folder there is a one file called style.css. Just press enter. So it will link CSS file with the HTML. Then we created a header, okay, but in header we will create a logo, right? We create a logo kind of thing, which was here. Like we have logos and all going on here. Also, this is a logo. We can have a different logos also. So pictures we can put up there, and then that's the header doing things. Then we have the navigation pane where we will build these navigations later, right? Where we click it, it will go to the different page. We click this, we go to another page, or something like that. That's called a navigation. So this is the now bar here again. So we have put up here the header and the now on the same plate. So we can have a different web layout. So that means we can have different web layouts. Here what we have shown is, if I go live here, okay, here what we have shown here right now is that we created a header, and then this is your navigation bar. Okay, now you can put up a different web layouts as per your liking. Okay, is my voice coming?
Yes, sir. Yes, yes. Okay. Now in the navigation bar, maximum times the once again somebody has come up. Maximum times the navigation bar we have is it has some links. So when it has some links, we will talk about anchor tag in a detail. But here, if you see, this is an anchor tag, and then we have here a few parts of anchor tag. One second, I will put on this pen. अभी लगाया नहीं मैंने एक second. Okay. Now, if you see this anchor tag here, okay, it has this is the anchor tag. Then it has the href. Href will hyperreference will tell us where it has to go if you click this text, because whatever comes, so this is anchor tag and this is the closing anchor tag. Whatever write in between, so this is anchor tag close here. Whatever you write here, first we write here home. So this home as a text will be clickable text which will come in our page. So if we see here, this home is coming as a clickable text here. Okay, if I click it, it will take me to the home page. Okay, it will take me to the home page, which is here, right? Okay, this one. Because why? Because I am writing after anchor tab href, I am writing home.html. So href is equal to home.html in double quotes. I'm writing it. So then I close this anchor tag here, and then I write something which will come as a text on a page. Then I close the anchor tag. So this is the anchor tag doing that. If you click this home, it will land you to this page. So that means if you write here the university website, okay, so and you write here KU, so if you click the KU, it will take you to that website. Simple as it is. Okay, I don't think there is anything in it, but I will come back to the anchor tag later, which has no lot of details in it. The other details. Okay. Now we created this menu list here, and if I want a little bit more changes to the menu, okay, like I don't want right now, I don't want this underline here. Okay, and when a mouse we hover mouse, it should change the background color and it should increase the font. So three things I will add to it. Okay, in the CSS here I am saying that in the now there is an anchor tag. If there is an anchor tag in the now, because we have in the now there is an anchor tag here which is under the ul, and under the ul there's li and there is a. I don't need to write, because in now there is the anchor tag. I can access it directly using saying in anchor tag now there's an anchor tag, and for that I say text decoration none. So text decoration none means that that underline is gone. Okay, you see the underline, because the href gives you the underline, the link. So but I don't want to look it as a link. I don't want to look it as a link. If you see here, I do not have the links kind of things. Okay, later on, even though I'm putting up the underline to that only which is active, you know, the active tab gets the underline. Okay, as you could see here, the active tabs gets the underline and rest do not get the underline. Okay, so that's I firstly I want to remove this underline. So how we do that? I say text decoration none. Okay, getting this thing or not? Now I want Yes, Yes, sir. yes. I want to hover. If I hover on it, so I say in my nav bar there is a ul, okay, and there is an li. You see, home index.html. In the nav bar there is an ul. In the ul there is an li. If you hover on this li, okay, on this, because there is a home and this whole li, if you hover on that, if you hover on that, so how you hover, you say colon hover. Okay, if you hover, then you want to do something. Maybe I will change the background color first. Background color I will make it white, for example, I'm saying. And maybe I change the font size. I change the font size, say font size becomes 25 pixel. Okay, yeah, or you can change the different font. So that means if I hover over the home now, you see it's changing the background color and it's making its font size also. It's changing the font size also. So some kind of an animation happening. Okay,
So I am saying that in the nav tag there is a ul, and I will put the whole li, but why is giving only to the anchor tag only, right? Let me write it again, because I want to change to the everything. So I say now, in a nav var there is the ul, and in ul there is an li, and do this to that. Yeah, now it's happening. I don't know, there was some problem before that. Now why is it on the hover? Hover भूल गया मैं क्या? हाँ, इसके hover पे ना, on the hover of it, यानी कि जब hover करेंगे तब होना चाहिए. Yeah, okay, and so on. So that means if you want to change the background color, and you have hover it, so you can do it like this. You have to first select the tag, which tag you're talking about. Then on that tag you have to use the hover command. Got it? Okay, actually Yes, sir. yeah, there should be no space actually, so it will work properly now. You see home. Now two things happen of the hover: the font goes increase, and the background color changes, right? Okay, so little bit you understanding what I'm doing. Yes, sir. Okay, we will slowly go up, हम यहाँ पर yes. सर हम सब LI को हम यहाँ पर होवर कर रहे हैं ना, अगर एक को खाली करना होगा. अगर एक ही li को hover करना होगा, then you have to give that li a name. We can do in two ways. Either we can put up the class, or we can put up the id. यानी कि आप सिर्फ एक ही को करना चाहते हो, वही कह रहे हो आप? Yes, sir. Then you need to identify it. For example, your roll number is 1. If I put up to the whole class, MERN stack class, whatever I do, it is going to everybody. But now if I have to talk only to Majid, then I have to call the name of the Majid, right? So that naming can be done using the class or id. We'll see that later, okay, when we target only one of it. So simple as it is, that you have to create here in the home, in the index, you will create this li, for example. You will create an id of it. यहाँ पे आप id रखोगे इसका, for example 1, a, b, something. Then you target in the style only that a. Okay, you have to say, if it is an id you can say hash a. If it is class you say dot. We will do that. We will do that in the css, don't worry. Okay. Thank you, sir. Now we said that we want to build the basically web layout. In the web layout I said that we have, because css, making it beautiful and all, we will do that in the css, because right now I'm trying to teach you the semantic tags, and I'm showing a little bit of css so that you can see the difference. So now in the header, this is my header. We created the header, then we created the navigation. Now we want to create a footer on the bottom and the two areas here. Okay, this one is bigger. Okay, this is the main area. Okay, in the main I want to have the articles. Okay, let me make it a little bigger. So I will do like this. This is my header, this is my navigation. We have done it. And now in this, here is my footer. I will create the footer on the bottom, and I will create, say, 70% of the space. I will give it to the main, and in the main I divide it into 1, 2, 3 and 4 areas. The 4 areas I have is the article. This is the article 1, article 2, article 3. Okay, and then I have the section area, and this is the a side. So I want to create a web layout like this. Now I have to create firstly the main, where in the main, inside the main, I have to create 3 articles and a section area, and on the right I have to create an aside, and I have to create a footer on the bottom. Okay, this is my web layout I'm trying to do. Okay, now therefore I go to the index.html, and here in the below the nav, now I have to develop which tag? A main. Okay,
inside the main tag I want to have the 3 articles. Okay, maybe I will what the Majid was saying, I will use the ID to individually, यानी कि कल मैं आर्टिकल टैग को करूँगा वो सबको नहीं होना चाहिए, अलग अलग को होना चाहिए स्टाइल, लाइक what the Majid was saying. So maybe I will say write like this article. This is the article tag. Okay. Then I say hash. If I have, this is a shortcut of writing, shortcut way of writing. Then hash a1 into 3. So what I am trying to tell my VS Code is to create an article tag with an ID of a1 3 times, means 3 such articles. Now look at it, press enter. Now you see I got the 3 articles. This is the number 1 article where I have the article, as you could see, with an ID of a1. Now I can say this ID of a2 and I can say this ID of a3. There are 2 things to name a particular guy. One is the class, one is the class, and one is the ID. Now when I say class, for example, I'm teaching the Mern stack and I will write all of you Mern. As a class, I will write you Mern. So that means you all belong to the Mern stack class. So if I use the class dot, then I have to use a dot Mern like this in the CSS. So whatever I style apply, it applies to the all of the guys who belong to this class. So class can name multiple things together. But ID, when I say ID is equal to, say for example a1, this a1 can be only to a particular element. So for example, like roll number. Your roll number, if I give you roll numbers, I have to give you roll number 1, 2, 3, 4 or something like that. But that roll number 1 cannot, 2 people cannot have the same roll number. So ID is specific to a 1 person only. So that means if I target that in my CSS, I have to say hash a1 and style it. Now this style, whatever the style you apply, it will apply only to that element only which has that ID. Got it? Okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Don't sleep. Yes, sir. Now- Yes, sir. Now article, I'm saying article ID is equal to a1. So it will be a1. If I target the a1, it will be only to this article. In fact, I have 3 articles now. Okay. But now, once again, now this article a1, this is a2 and it's a3 name. Here I will put up, say for example, my first article, I put up the h1 tag here and I say this is article 1. This is article 1. And here, the second article, I say h1 tag again. This is article 2. Okay. And if I have here, I will say h1 tag and I say this is article 3. You getting? So I put up 3 articles. If I see, if in the style, I will take up the article tag. I will take up the article tag. Okay. Firstly, I want to target the main. I want to target the main. Okay. Because if you see the page here, one second, HTML index.html. Yes, why is not saved? Yeah, you could see it is coming like this. But where is the main? I want to divide this page. So firstly, to see that, I will put up some borders. Okay, to understand, I will put up some borders. So I target the main. Okay, in the main, I will say, because I want this main to take 70% of the space and aside 30% later. So that means I will put up this is my header, this is my navigation bar, then 70% of the space should be taken by the main, okay, and 30% by the aside. 70% by main, 30% by aside. You got it? Okay. So Yes, sir. if I also, I will write here the aside. I will create the aside also in the index. After main, I will create aside. This is my aside. Okay. Right now, maybe I put up S1 here, H1 tag here, and I say aside here, aside here. But if you look at it in the browser, it will come stacked on each other. So this is the, say firstly, let me put the borders, then you'll understand what is going on. Let me put some borders. To the main, I put up the border, okay, of size 2 pixel, solid red. Now you see
it's coming up. This is my the main area. This is the main area. Okay, because what is the main, what is the header, what is the logo, I mean, sorry, this nav, they are just the areas, they're boxes, they're containers. Okay, like div, but now with the special names, like I told you. But I want it to take, say, height, maybe इसको मैं height भी दूंगा, height, say for example 500 pixel. Now it's taking 500 pixel size, right? Is it? And where is aside? Aside is on the bottom, but let me put the border to the aside also. Let me put the border to aside and also to understand aside. Let me style the aside. I say border 2 pixel solid black. Maybe I will give it to black to see difference. Okay. Now if I go here, you see it's getting the on the bottom, but it has to be on the right, right? So it has to be on the right, but I will give it height height same as that of that 500 pixel, because it should be having the height same as that of a main. But where is it coming? It's coming on the bottom side, right? It's coming on the bottom side. As you could see, the black one is coming on the bottom. So ये जो आपका मेन है, देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी CS की समझानी है. ये जो आपका मेन आ गया यहाँ पे, ये मेन एरिया आ गया और एसाइड इसके नीचे आ गया. क्यों? क्योंकि एक पोजीशन चीज़ होता है CSS में, पोजीशनिंग होती है, जो पोजीशन टैग हमारे पास है CSS के अंदर कि भाई चीज़ें कहाँ पे होंगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है. यानी कि आप कोई भी चीज़ डालोगे, आप डिव डालोगे, आपने कोई भी टैग डाला, वो स्टैटिक होता है, यानी कि वो पूरी जगह पकड़ता है अपनी. उसके बाद दूसरा आएगा वो यहाँ पे पकड़ेगा, तीसरा आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, चौथा होगा वो इसके नीचे आ जाएगा. लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि ना, मैं इसको पहले कम करूँ, जैसे मैं 70% ही इसको करूँ और दूसरा फिर ये मैं यहाँ पे लाऊँ इस स्पेस में, ये नॉर्मली नहीं हो सकता. तो मुझे अपने स्टैटिक जो इसकी पोजीशन है उससे हट के कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, पहले आप ये बात समझो. यानी कि मैं पहले एक काम करता हूँ, लेट मी क्लियर दिस. मैं जो मेन है ना, मेरा मेन, उसकी विड्थ मैं रख रहा हूँ 70% ओनली. ठीक है ना, 70%. ना देखो ये 70% आ गया आपका. ठीक है, और मैं एसाइड को मैं रखता हूँ 30%. इसकी विड्थ मैं रखूँगा 30% ओनली, 30%. देखिए देखिए, ये जो आपका एसाइड आ गया वो 30% है. 500 पिक्सल्स दोनों हैं, इनकी हाइट सेम है. लेकिन मैं चाहता हूँ ये एसाइड कहाँ पे जाए, मैं चाह रहा हूँ ये एसाइड यहाँ पे आए, साइड में, राइट साइड आए, है ना. लेकिन ये आएगा नहीं, क्योंकि जो पोजीशन है वो स्टैटिक है बाय डिफ़ॉल्ट. पोजीशन क्या है? स्टैटिक. ठीक है. इफ आई इंस्पेक्ट इट, ओके, आई विल चेक द CSS हियर. आपका एसाइड ये है ना, ओके. इसकी आपने लिखी है कि इसका जो बॉर्डर जो है, देखिए 2 पिक्सल इसका आ गया है. हाइट इसकी 500 पिक्सल है, विड्थ 30% है इसका. ये हमने इसको कर दिया है. पैडिंग इसकी 0 आ रही है, मार्जिन 0 आ रहा है. क्यों? फॉर फॉन्ट फैमिली, क्योंकि हमने ये स्टार में इसको लगा दिया ना ऊपर. वो याद है आपको, जो स्टाइल में हमने पहले ही स्टार लगा दिया. ये यानी कि ये स्टार मीन्स दिस विल बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी टैग. ये तीन चीज़ें, ये तीनों चीज़ें लग गई इसमें. आप देखें यहाँ पे पैडिंग 0 लग गया, मार्जिन 0 लग गया, फॉन्ट फैमिली ये लग गया, और बॉक्स साइजिंग मैंने बॉर्डर बॉक्स. व्हाट इज़ द बॉर्डर बॉक्स जो कल दिखाया था मैंने? बॉक्स साइजिंग, इससे क्या होता है सर? ये खाली उसको अप्लाई करता है, मतलब बॉक्स साइज जितना सर हमारा बॉक्स होगा उसके बाहर नहीं जाएगा. हाँ, जो पैडिंग वगैरह है वो इसी में काटेगा, है ना, वो काटेगा ना उसी में. यस सर. हाँ. और डिस्प्ले देखो यहाँ पे ब्लॉक आ गया है. वो डिस्प्ले ब्लॉक क्या होता है मैं समझाऊंगा बाद में. तो इसकी जो पोजीशनिंग वगैरह है वो स्टैटिक है, यानी कि वो ये मूव भी नहीं हो सकता. इसको मैं टॉप लेफ्ट भी नहीं कर सकता. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, जो ये है ना ये मेन टैग, ठीक है, जो मेन एरिया है, मैं चाहता हूँ कि इसका मैं लेफ़्ट थोड़ा आगे कर दूँ. आई कॉन्ट डू दैट. यानी कि अगर मैं इसको जो मेरा मेन है, मैं चाहता हूँ ये आगे जाए थोड़ा सा, इसका लेफ़्ट जो है ना वो लेफ़्ट थोड़ा आगे से जाए, से 50 पिक्सल्स ये आगे जाए. ओके.
मैं चाहता हूँ ये आगे जाए 50 पिक्सल्स, ये जाएगा नहीं क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक के ऊपर आप लेफ़्ट राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट आपने डाला, आपने डिव डाला या कोई भी चीज़ आपने डाली, उसका पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट? स्टैटिक। व्हाट डज दैट मीन इज कि ना ये फिक्स्ड रहेगा अपनी जगह पे और ये पूरी जगह पकड़ेगा, और जो दूसरा इसके बाद आप लगाओगे वो इसके नीचे आएगा, तीसरा वो इसके नीचे आएगा, और इसको लेफ्ट राइट भी टॉप बॉटम नहीं कर सकते आप आगे पीछे। तो यानी कि इसको हम उठा सकते हैं, पोजीशनिंग उठा सकते हैं। वो बहुत सारे हैं चीज़ें हैं जो पोजीशनिंग हम करते हैं। आप याद रखें पोजीशनिंग में डिफ़ॉल्ट क्या होती है आपको? स्टैटिक। एक और होता है रिलेटिव, हम अच्छे से पढ़ेंगे विद एग्जांपल इन द CSS। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ। और तीसरी होती है एब्सोल्यूट, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। एक और होती है फिक्स्ड, एक और होती है स्टिकी। और बाद में जो हम पोजीशनिंग सारी करेंगे ना, वी विल यूज़ फ्लेक्स बॉक्स, वी विल यूज़ व्हाट? फ्लेक्स एंड ग्रिड। हम बाद में फ्लेक्स बॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ग्रिड कहीं कहीं इस्तेमाल करेंगे, और मेनली हम फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करेंगे, विच विल बी मच ईजियर फॉर अस टू अरेंज थिंग्स ऑन द पेज। मुझे यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, इसको इधर रखना है, किसी चीज़ को इधर रखना है, किसी चीज़ को यहाँ पे रखना है। तो ये सारा हम फ्लेक्स बॉक्स से करेंगे, वो बड़ा ईजी बन जाएगा। उससे फिर आपको जो सेंटर करना है या पोजिशनिंग प्रॉपर करनी है ऑन द पेज, वो आसान हो जाती है यूजिंग द फ्लेक्स बॉक्स। लेकिन हम मैन्युअली भी कर सकते हैं यूजिंग द एब्सोल्यूट और रिलेटिव और फिक्स्ड, स्टिकी। अब ये चीज़ें क्या होती हैं मैं वो डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं CSS में। अभी मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि जो मुझे चाहिए ये इस पेज के लिए, कि मेरे को जो मैंने हेडर बनाया और उसके बाद मैंने नैव बनाया, अब जो मेरा ये जो पेज है और अब जो मेरा मेन है, वो मेन 70% आना चाहिए। और जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना मेरा ये कौन, एसाइड, वो एसाइड नीचे नहीं आना चाहिए। वो एसाइड नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इनकी अभी पोजीशनिंग स्टैटिक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये एसाइड यहाँ पे, ये 30% यहाँ पे ये स्पेस जो बची है इसमें एसाइड आए और मेन यहाँ पे आए। तो उसके लिए मुझे उठाना पड़ेगा इसको, ताकि ये घूम सके इस पेज के अंदर। तो मैं इसकी पोजीशनिंग जो है वो बनाऊंगा एब्सोल्यूट। क्या बनाऊंगा? एब्सोल्यूट। अगर आपने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया तो अब आप इसको कहीं पर भी घुमा सकते हो। यू कैन पुट अप, अगर मेरा कोई चीज़ है यहाँ पे, वो यहाँ पे लगेगा कोई चीज़, लेकिन मैं उठा के यहाँ डालना चाहता हूँ, यहाँ पे डालना चाहता हूँ, यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ये पूरा हवा में उठेगा ये। अगर इसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट हो गई, मैं इसको इसके ऊपर डाल सकता हूँ, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी एक एलिमेंट है। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल H1 टैग है यहाँ पे, मैं दूसरा H2 टैग लगा रहा हूँ। ये H2 टैग जो है, H1 यहाँ पे आएगा, H2 इसके नीचे आएगा, क्योंकि इनकी स्टैटिक है पोजीशनिंग। लेकिन अगर मैं इसको पोजीशनिंग मैंने एब्सोल्यूट बना दी, मैं इसको कहीं भी उठा सकता हूँ। ये इन हवा में उड़ गया, मैं इसको इसके ऊपर डाल सकता हूँ, इस H1 के ऊपर डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल, जहाँ मर्जी होगी। सो यानी कि अगर इसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट आ गई तो मैं इसको किधर भी घुमा सकता हूँ। गॉट इट? यस सर। ये इसके ऊपर भी आ सकता है। इससे पहले जो है, अगर स्टैटिक है वो इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं है। पहले तो ये H1 पूरा अपनी जगह पकड़ेगा, दूसरा फिर H2 इधर आएगा, ठीक है? गॉट इट? लेकिन Yes, sir. अगर इसकी पोजीशनिंग मैंने एब्सोल्यूट रखी, अब मैं ये H1 के ऊपर डाल सकता हूँ, एक दूसरे के ऊपर जा सकता है। लाइक आपके पास एक पार्किंग स्लॉट है, जो कि मल्टी टियर पार्किंग स्लॉट है। तो एक गाड़ी इधर है तो अब दूसरी गाड़ी इसके ऊपर आ सकती है, यहाँ पे दूसरे फ्लोर पे आ सकते हैं ना, तीसरी गाड़ी इधर आ सकती है। वो तब पॉसिबल है जब मैं मूव कर सकता हूँ इनको ऑन टॉप ऑफ द अदर कार। लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक था उसमें तो अपनी जगह पकड़ेगा, फिर दूसरा जो है वो उसके नीचे आएगा, इसके ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पोजीशनिंग, शाबाश, एब्सोल्यूट। यस। अगर आप एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करते हो तो फिर जाके आपको जो है ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो आपका ये है, हाँ, इसको आप इंडिपेंडेंट बनता है। यस, इसको आप ले सकते हो फिर जहाँ आपको लेना है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कहा कि जो मेन है मेरा, उसका मैंने बॉर्डर दे दिया, विड्थ दे दी और हाइट दे दी, ठीक है। किसका? मेन का 800 मेन। मैंने 500 पिक्सल रख दिया इसकी हाइट एंड ऑल, ठीक है। अब मैं जो है
जो मेरे आर्टिकल्स हैं पहले, कौन जो मेरे आर्टिकल्स इसमें है होम में, इंडेक्स सर्च में, यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं, पहले आर्टिकल्स को हम थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। होम कहाँ गया मेरा स्टाइल डॉट सी एस एस, तो आर्टिकल्स को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर दूंगा, ठीक है। अब बताओ आर्टिकल्स अगर मैं सारे आर्टिकल्स को पढ़ूंगा, मैं आर्टिकल ऐसे करूंगा, मैं आर्टिकल टैग, और मैं कहूँगा बॉर्डर इनका दे दो भाई, say for example 3 pixel solid and give it red again, ओके। तो अगर मैंने ये किया तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों का बॉर्डर लग जाएगा, लगेगा ना, बिकॉज व्हेन आई से आर्टिकल टैग इट इज गेटिंग टू एवरीबडी, राइट। या इसकी विड्थ, जो आर्टिकल की विड्थ है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ये करे। इसका कलर मैं चेंज करूँगा, कलर टू वाइट, से फॉर एग्जांपल इसका कलर वाइट, यानी कि कलर मीन्स टेक्स्ट कलर, तो वो तो गायब भी हो जाएगा फिर अगर मैं टेक्स्ट कलर वाइट करूँगा। सो मे बी आई विल चूज़ डिफरेंट कलर, मे बी ब्लू, ओके, चूज़ द ब्लू कलर। सो तो डिफरेंट कलर आ गया इनको, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ये तीनों पे हो रहा है ना, ठीक है। ये क्या हो रहा है, तीनों पर। तो लेकिन मैंने इनको टैग्स, मैंने इनको आईडीज दिया हुआ है ना, मैंने इनको आईडीज दिया हुआ है, Yes, sir. मैंने A1 A2 A3 आईडीज दी। सो आई कैन टारगेट ईच इंडिविजुअली। सो इफ आई से पहले इनका जो साइज़ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, इनको मैं जो विड्थ है, विड्थ तो इनकी बराबर ही रखनी पड़ेगी 100%। जो इनकी विड्थ है वो मैं रखूँगा 100%, क्योंकि इट विल टेक द 100% ऑफ व्हाट, इट विल टेक 100% ऑफ द पेरेंट इनका ये है ना। पहले मेन इनको मेन पहले इसको कलर डिफरेंट देते हैं, रेड नहीं देंगे इसको, सही येलो, कुछ ग्रीनिश देंगे, ठीक है, ये वाला ग्रीन देंगे बॉर्डर, ताकि दिखे अलग, ठीक है। तो जो इनका पेरेंट है ना वो रेड बॉक्स बाहर वाला है मेन, तो उसका 70% ऑफ द व्यू पोर्ट था। जो व्यू पोर्ट मीन्स पूरा स्क्रीन का साइज, व्यू पोर्ट मीन्स स्क्रीन का साइज, स्क्रीन का 70% लिया था इस मेन ने, ये जो ये वाला रेड है ना बॉक्स, दैट इज द मेन, गॉट इट। अब इसमें इसका 100%, आर्टिकल तो अपने पेरेंट का 100% लेगा, तो जितना इसका पेरेंट है उतना पूरा ले लो, ठीक है। और इनकी हाइट टोटल कितना है हमारा, 500 पिक्सल है ना, मैं 600 करूँगा फॉर एग्जांपल, 600 पिक्सल बाई 600 रखूँगा मैं, या 800 रखेंगे हम, 800, क्योंकि हमें सेक्शन भी डालना है ना। 200 पिक्सल में रखूँगा, 800 पिक्सल साइड भी, और इसका हाइट में रखूँगा 200 पिक्सल। त्रेन गई ना शहत, त्रेन गो शहत गई ना, गई त्रेहत जहत 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 जहत, पत हो लास्ट जहत हो अमज त्रो सेक्शन, आर्टिकल 3 त्रे ना मैं, अब इसमें मैं डालूंगा सेक्शन लास्ट वाले आर्टिकल में, ठीक है। या अगर हम छोटा ही करेंगे, ज़्यादा हो गया, बड़ा स्क्रीन से बाहर आ गया ना, स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं इसको 500 रखूँगा, इसके तशीम 400 रखूँगा मैं, 400 पिक्सल, ये भी रखूँगा 400 पिक्सल, और इसको रखूँगा मैं 100 पिक्सल ईच। तो अब ये यहाँ पे आएगा, देखो ये आ गया इसका 100 पिक्सल, 100 और ये एक 100 बच गया कुल, क्या, क्योंकि मेन का 400 पिक्सल है, तो वो उसमें मैं सेक्शन डालूंगा फिर इस एरिया में। सो दिस विल बी द सेक्शन। सो फॉर एग्जांपल आई विल गो टू द इंडेक्स, जो मैंने 3 आर्टिकल्स बनाए यहाँ पे, ठीक है, इसी मेन के अंदर ही जो मेन है इसके अंदर ही मैं बनाऊंगा अब सेक्शन टैग। सो दिस इज योर असाइनमेंट H1 section here. What is difference between section and article? Write down the assignment. What is difference between, ये क्या हो गया इसमें, section बन गया और H1 section here, तो ये आ गया section यहाँ पे, इसमें आ गया section है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ पहले मैं सबको ये कर रहा हूँ, इसमें स्टाइल आर्टिकल, सब आर्टिकल्स को मैं पकड़ रहा हूँ कि भैया आप एक काम करना, 3 पिक्सल सॉलिड ये येलो देना, कलर आप ब्लू कर दो, विड्थ 100, हाइट ये कर दो, मे बी आई विल से, इफ आई से मार्जिन 10 पिक्सल्स, ताकि आपस में ये थोड़े दूर भागें, ठीक है। ये 3 आर्टिकल्स आगे मेरे पास दूर दूर आ रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन, अगर मैं इसको करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है। ओके, और मैं क्या कर सकता हूँ इसको, शाबाश। अगर मुझे ये अब वर्टिकली सेंटर में भी लाना है ना, ये या ना हॉरिजॉन्टल सेंटर में, वर्टिकल सेंटर में क्या करना है इस रात, शाबाश। उसके लिए मैंने क्या किया था, मिन हाइट, फ्लोट मिन हाइट, min मिन height. हाइट, मिनिमम हाइट क्या रखा था मैंने, जितना है उसका 100 पिक्सल, और लाइन हाइट है, मिन हाइट एंड लाइन हाइट। ये लिस्ट लिख रहा है, मतलब कौन सी लिखा है, लाइन हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। आगे ना पूरा बीच में अब, ठीक है। सर जो हमारा आवाज़ ब्रेक हो रही है, फिर से बताएं। सर जो हमारा आर्टिकल है इसकी जो मार्जिन हमने रखे ना बॉर्डर की, हाँ, ये पेरेंट से बाहर कैसे गया? ये पेरेंट से बाहर जाएगा क्योंकि कौन, ये पेरेंट से कहाँ गया, इधर। जी, हाँ, कि आप कह रहे हो कि इसका तो बॉर्डर बॉक्स ये था, अगर बॉर्डर बॉक्स था, ठीक है जी। ना, तो हमने लेकिन इसकी जो हाइट रखी, ये विड्थ रखी है ना, वो हमने रखी है ना कि पेरेंट के जितनी इसकी जितनी है विड्थ इसकी 100%। 100% है, यानी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए इसकी विड्थ जो है ना, देखिए हाँ, ये हो जाएगा इसका, क्योंकि मैंने मार्जिन दिया ना इसको, मुझे देना था मार्जिन टॉप ओनली, क्या देना था, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। ऐसे करना था, तो कि ताकि इनको मार्जिन टॉप पे ये आ जाए। अब आप बताओगे ये बाहर, तो ये तो बाहर जाएगा ना इसके, ठीक है। कौन, क्यों क्यों जाएगा बाहर, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो उतनी है जितनी किसकी विड्थ है, मेन की सर। मेन की। से फॉर मैं एग्जांपल मेन की विड्थ है 800 पिक्सल फॉर एग्जांपल, तो विड्थ आ गई इसकी 800 पिक्सल। और जब आप मार्जिन करोगे राइट साइड एड, सो गए ना 800 प्लस 10 पिक्सल 10 गए, 8 से 10 पिक्सल गए यस ना, सर, सो अत बढ़ियो ना यस सर, साइज, यस सर, यस सर। अत बढ़ियो साइज, सो जी, गए सो तो उससे बाहर जाएगा ही, ठीक है। तो ओके। मुझे ये बताया आप कि मैंने इसको ये किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअली आर्टिकल्स को टारगेट करूँ। मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है चेंज करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, अलग अलग। सो देन आई हैव टू यूज़ द आईडी, जो मैंने आईडी दिए हुए हैं वहाँ पे, जो मैंने आईडी दिए हुए हैं। आईडी क्या दिया है मैंने इसको, आर्टिकल 1 को, A1 so I can target the A1. So if I target the A1, because it's an ID, so I have to use the hash A1. So whatever style I will do, say for example background color, say for example aqua, or something, not aqua, maybe some bisque, for example I'm going the bisque color. Now it will apply to whom, only article 1. only article 1. So that means if I have to do with this, I say control shift command and down, no, not shift, this is, I have to say select it, shift option down arrow. So this is for A2 now, and this is for A3. Okay, so what is my so change the color, different colors, हाँ, so इसका कलर ये कर दिया, और इसका कलर जो है आपने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ओके। Correct में change, yes. So now I will have all the 3 different colors. So I am targeting 3 different colors. You getting? हाँ जी, Yes sir. इसमें कहीं पे इशू है? नहीं सर। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ आप, अच्छा एक सवाल यहाँ पे, एक मुझे बताओ कि अगर हमने बॉर्डर बॉक्स रखा है ये, अगर हमने कहाँ पे रखा हमने, तो बॉर्डर बॉक्स, तो वहाँ बॉक्स साइजिंग हमने रखा ना बॉर्डर बॉक्स, यस सर। तो मार्जिन से ही बाहर क्यों गया फिर भी, तो ये तो इसी में लेना चाहिए ना, जो हमने कल बताया था। सर जहांगीर भी बता रहा था अभी। तो हाँ, मैं फिर से आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था कि अगर हमने बॉर्डर बॉक्स रखा, क्या रखा, अगर हमने बॉर्डर बॉक्स उसमें जो विड्थ आपकी होती है वो बराबर किसके होती हैं, जो अपनी विड्थ है प्लस, हाँ जी, मार्जिन, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट, प्लस पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग पैडिंग राइट।
नॉट द Padding, right? मार्जिन। जब आप मार्जिन की बात कर रहे हो ना, वो इसके बाहर हो रहा है ना, वो अंदर की बात नहीं हो रही है, वो इसमें नहीं आएगा विड्थ में। अगर आप मार्जिन कर रहे हो ना, मार्जिन क्या कर रहे हो, ये जो Margin. बॉर्डर बॉक्स का मसला था वो पैडिंग के साथ होता है, वो बॉर्डर के साथ होता है। किसके साथ? जो आपकी, अगर आपने अंदर से पैडिंग की हुई है वो, या आपने बॉर्डर रखा है, मोटा बॉर्डर रखा आपने वो, और बॉर्डर लेफ्ट या बॉर्डर राइट आपने कर दिया, और आपने इसकी पैडिंग की अंदर से, ये उसमें लेगा विड्थ। सो 100% ऑफ विड्थ जो आपकी है, या आपने 70% ऑफ विड्थ जो रखा है इसका, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल आपकी विड्थ है, तो उसमें अगर आपने बॉर्डर खड़ा कर दिया मोटा, अब तो अगर बॉर्डर आपने दिया 30 पिक्सल्स, अब वो 300 प्लस 30 नहीं करेगा, वो 300 में से ही 30 काटेगा बॉर्डर के लिए, या आपने पैडिंग कर दी, लेकिन मार्जिन बाहर से हो रहा है ना, यस सर, मार्जिन बाहर से हो रहा है। वो इसमें नहीं आएगा विड्थ में, वो निकलेगा बाहर। सुना मार्जिन, सुना ये दकई दिवान बिल्कुल सर, सो नेबरिमस पेजस सितन। नेबर की दिवान दाक युकनी सुना खसा यो नेबर की दाक दिवान, ठीक है, वो विड्थ में नहीं आएगा वो तो, क्योंकि विड्थ के साथ हम छेड़ नहीं रहे हैं, जो विड्थ में रही है वो वही है। अगर आप मार्जिन दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो विड्थ के साथ हम छेड़ नहीं रहे हैं, जो हमारा विड्थ है वो वही है, लेकिन हमने इसको यहाँ से धक्का दिया, मार्जिन दिया यहाँ से, बस बाक ब्रोह पामत स्पेक ना योर ती ब्रोह यस विड्थ सर। छना तिथि विड्थ में सिमा को क्या ना अस गो इंक्रीज ही क्या, मगर अगर बह बॉर्डर बॉक्स थव न कहें पत् हा बह ये 300 पिक्सल ओस ये पत् दिम या लेफ्ट बॉर्डर मोट, यह कर इंक्रीज अत विड्थ, तम से विड्थ इंक्रीज, क्या गसे, या मे कोर पैडिंग अंदर, क्या कोर मैं, ये खुलाए बे रस खंड, यह कर विड्थ इंक्रीज, ठीक है। मगर अगर हमने बॉर्डर बॉक्स रखा है, क्या रखा है, बॉक्स साइजिंग रखा है बॉर्डर बॉक्स, तो जो मेरी विड्थ है वो उसी के अंदर अपना मार्जिन ये काटेगा, ठीक है। और पैडिंग शेडिंग, यानी कि अगर मैं इसके यहाँ टेक्स्ट रख रहा हूँ, इसके अंदर वो पैडिंग देगा, मगर विड्थ अपनी वही रखेगा जो है, उसके साथ छेड़ेगा नहीं, उसी में काटेगा आपकी बॉर्डर भी, और उसी में काटेगा आपकी पैडिंग भी। लेकिन अगर आप मार्जिन में यहाँ धक्का दे रहे हो ना इसको, यहाँ से, ये पूरा डब्बा जाएगा आगे। हाँ, उसको विड्थ के साथ कुछ वास्ता है नहीं ना, क्योंकि वो बाहर से हम काम कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब, यस सर। Yes, sir. समझ आई माँ। अब मुझे एक बार बताओ कि यार मुझे जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो मेरा ये है एसाइड, जो मेरा एसाइड है वो कहाँ पे आ रहा है, नीचे। तो जो एसाइड मेरा है, मैं चाहता हूँ कि एसाइड जो है, एसाइड को मैं क्या करूँ पहले भाई साहब, ताकि मुझे वो वहाँ पे एसाइड लिखो मैं कहता हूँ, मगर एसाइड में लिखा ना Absolute ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर ऊपर एसाइड पे ऊपर काम किया हुआ है मैंने यहाँ पे ना, वी कुड सी इसकी हाइट 30% है, हाइट ये है, लेकिन इसकी मैं क्या करूँगा, पोजीशन क्या करूँगा, पोजीशन में इसका Position. एब्सोल्यूट रखूँगा। तो जो ही मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, तो अब ये जो है मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लेफ़्ट कर दूंगा, भाई साहब इसका लेफ़्ट कर दो 50%, ठीक है, तो अब ये आगे गया, ऐसा हट गया ना आगे, अब ये उठ रहा है ना, ठीक Yes, है। sir. अगर मैं इसका टॉप कहूँगा, भाई जो इसका टॉप है, हाँ वो ले लो आप भाई साहब 20%, फॉर एग्जांपल 20% ऑफ द पेज, देखो अभी इसके ऊपर चढ़ गया ना, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप करूँगा, भाई इसका टॉप जो है, इसका लेफ़्ट जो है वो 10% कर दो, सॉरी नॉट 100%, 10% कर दो, आपको समझ आ रही है। अब Yes, sir. ये इसको मैं किधर भी ले सकता हूँ ना, जैसे मैंने कहा था ना, जो पार्किंग में गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ गई ना, तो अब मैं इसको उठा के कहीं पर भी ला सकता हूँ। मुझे कहाँ लाना है अब, ये यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ अगर मुझे वहाँ पे लाना है तो मुझे क्या रखना चाहिए इसका, सर ये 10% ऑफ द होल पेज करता है कि 10% ऑफ द खाली मेन का? ना ये कर पाइनिस पेरेंट्स देखना ये किस पेरेंट में है, ये ना मेन का ये जो है असाइड उमत मेन में है,
एसाइड किस में, वो मेन के बाहर है, इसका पेरेंट बॉडी है, है ना। Yes, sir. हाँ, ये अपनी ये पेरेंट के हिसाब से चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ आप एक चीज़, अगर आप मेन कह रहे हो ना, वो मेन पेरेंट है इनका सेक्शंस का, सेक्शन और आर्टिकल्स का, है ना। अगर मैं आर्टिकल का 10% 20% करूँगा, वो करेगा एज पर द मेन, जो इसका पेरेंट है, ना, जो इसका पेरेंट होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, इसका पेरेंट कौन है, मेन। Main. सो अगर मैं इसका 10% 20% करूँगा, दैट विल मेन। लेकिन जो असाइड है, इट विल डू द पेज, होल पेज, बिकॉज इसका पेरेंट बॉडी है, बॉडी टैग। ओके, अब मुझे बताए मुझे कहाँ पे लेना है इसको, Sir, right side. इसको यहाँ लेना है ना। तो उसके Yes, लिए sir. क्या करोगे आप, इसको बताओ। CSS, कल वाला वो फ्लोटिंग कुछ था ना आपने नहीं किया नहीं, था? इसको तो ये तो उठाया ना मैंने। जी तो इसको माइनस करना है ना उसकी विड्थ जो हमने रखी। जो सर ऑलरेडी विड्थ है हमारी आर्टिकल की, उसको उसके width में ही आर्टिकल की हम नहीं, करें। आर्टिकल की नहीं, मेन की, मेन की, क्योंकि ये Main, मेन के मेन 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 के साइड में रखना है ना इसको। देखो, Yes, sir. मेन की विड्थ कितनी है, 70%. 70%। एस साइड की मैंने 30% रख दी, वो ना बराबर 100%। बिल्कुल सर. 100 ये मिस चलनी, लेफ्ट ये करना मिस गेम्स है लेफ्ट 5% चलनी पिक्सल की है क्या इज, बिकॉज मेन का जो है पोजीशन स्टैटिक है, स्टैटिक है तो वो। इशू फजूल लेखुन, ठीक है। इसको मैं कर जी सकता हूँ चेंज, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्युटली ये घूम सकता है अब कहीं पर एब्सोल्यूट। भी, ये घूम सकता है। पहले इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे इसका, लेट मी चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर। थे तो कैसा एक ही था एंटी वोटेवर, ठीक है। ये इसका कलर आ गया ना, ये इससे पता चल रहा है ना कि ये इशू है, ठीक है। पहले मैं इसका जो ये असाइड हेयर है ना, ये मैं लाना चाहता हूँ बीच में। तो बताओ क्या करूँगा मैं इसको बीच में लाने के लिए। मिन हाइट पहले टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. उसे सेंटर पे आ गया, लेकिन अब पूरा नीचे लाना है ना। हाँ, जल्दी बताओ। मिन हाइट. हाँ, मिन हाइट कितनी रखेंगे, जितनी इसकी हाइट है, अतकुदच हाइट 4 पिक्सल ना, यस सर. और लाइन मैक्स हाइट। लाइन हाइट. आ गया ना बीच में। अब बताओ, अब कहाँ में इसकी मिनिमम लाइन मैन कर दिए। अच्छा, और मैं एमसुन मिशना लेफ्ट एमसुन क्या शनु लेफ्ट sir, में ये 10% आव युतन मिशना युतन लागुन। यस सर. ये जो ये बंदा है, ये जो ये बंदा है मेन जो है, वो कितना है मेरा, 7 सर. अच्छा, विड्थ उसकी 70% है सर। तो लेफ्ट कितना रखूँगा मैं इसको। 70%। तो अगर मैं 70% लेफ्ट रखूँगा इसको, तो आगे ना 70% बराबर है। 70%. वहीं तो मैं टॉप कूदा था बस टॉप टॉप सन युतन यस सर. यह कूता चोर है यिथ पे चोर यह वुचन गोडनेथ हेडर कूता पे नैव कूता पे त्रोमुत कितना मार्जिन त्रोमुत ना। सो अब Yes, हमें sir. ऊपर से आना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा जो हेडर है उसका हाइट कितनी है 60 पिक्सल। 60 तो करो पिक्सल. 60 पिक्सल आप पहले ऐड, ठीक है। गया यम 60 पिक्सल पत गो नैव नैवस कूता 60 नैवस गो 60 कूता गो 120 और पैडिंग इसमें मार्जिन बॉटम डाला है 10 यहाँ पे, है ना। इसको डाला है 10 यहाँ पे, किसको, यस सर. नैव को। मार्जिन. सो 60 गो 120 तो 10 कस गए 130 बे मा कुछ जाए क्या त्रोमुत नैव 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 के बाद ही है ना ये। यस तो सर. मेरे ख्याल से 130 ही है शायद, पहले मैं देखूंगा इसको रखेंगे फिर देखूंगा मैं। असाइड इसका टॉप 130 पिक्सल पे आ गया ना बराबर। यस सर. इसके 60 थे, इसके 60 था हाइट। पता 10 त्रोमुत ये बॉटम त्रोमुत मार्जिन यथ ये त्रोमुत यथ मार्जिन कत ये क्या है नैवस। उसके बाद आ गया ये बराबर। अब बैठ गया ना साइड में, अब परफेक्ट, ठीक है।
अच्छा फुटर कहाँ है अब? फुटर लगाया था हमने, उसको उसको हमने किया ही नहीं है स्टाइल, है ना? फुटर विड्थ था वो 100%, बैकग्राउंड कलर था वो ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ताकि वो दिखे, ठीक है। और इसका कलर अगर उसमें टेक्स्ट है कुछ वो वाइट रखेंगे, ब्लैक एंड वाइट कैसे ना ये थी ना आई थी। और मिन हाइट मिनिमम हाइट रखो 60 पिक्सल की, और लाइन हाइट 60 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन सेंटर, हाँ, ताकि बीच में आए। इसको बॉर्डर भी रखो कुछ, बैकग्राउंड कलर हमने किया है वैसे ब्लैक, तो बॉर्डर रखने की ज़रूरत नहीं है। सुखा दिन सिलेक्शन ये नहीं कुछ जाए। अच्छा लगो इसको डिफाइनिंग बनना ही नहीं है अभी। HTML में। अच्छा फुटर हमने बनाया ही नहीं है ना, ऐसा है हमने फुटर बनाया ही नहीं है। फुटर H1 टैग फुटर, ओके आ गया, ठीक है, ये इसका फुटर आ गया, ओके। बीच में भी आ गया और ये आ गया साइड में, ठीक है। सो इसको हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, जब CSS हम पढ़ेंगे ना तब इनको सजाएंगे हम। फिलहाल हमने वेब लेआउट सीखा कि हम कैसे, सिंपली मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल ग्राउंड अप से, कि हम कैसे एक पेज को ये करेंगे। देखिए बाद में हम जब CSS पढ़ेंगे उसको डेकोरेट करेंगे ज़बरदस्त अंदाज में, लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप जिसमें हम इजीली काम कर पाएंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्ट जिसमें हम पूरा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे पास जो पेजेस है ना, हमें टाइम नहीं होगा कि हम एक एक आर्टिकल फिर एक एक चीज़ को हम ये करें, हमें हमारे पास बड़ा फास्ट होना चाहिए चीज़ों को। सो दैट इज़ वी नीड ए फ्रेमवर्क लेटर ऑन। बात समझ आई? यस तो सर। यहाँ पे अगर हम वेब लेआउट करेंगे, दिस इज़ योर असाइनमेंट, वेब लेआउट, वेब लेआउट, ठीक है ना। ये जो वाले वेब लेआउट पहला वाला कर लो, इसमें जो है आपको ये असाइनमेंट, ये आप असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। Now you see there are different layouts, okay? एक देखो ये वाला लेआउट, इसमें लोगो, ये नेविगेशन, ये हेडर यहाँ पे उसने किया है, साइड बार अब इसने लेफ्ट रखा है, और जो बॉडी मेन बॉडी है ना एरिया मेन, वो राइट रखा है, यस सर। और फुटर है। सो आपको ये करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर इस चीज़ की। और यहाँ देखो Yes, sir. इसने तो पोजिशनिंग, जो पोजीशन आप करोगे ना, जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स जो आपके थे, देखो आर्टिकल्स हमने लिए थे ना इसमें, देखो अगर जो हमारे आर्टिकल्स इसमें थे हमने ऐसे लिए हॉरिजॉन्टल, इसने कैसे लिए हैं? वर्टिकल। वर्टिकल लिया है इसने, तो इसने यहाँ पे वर्टिकल ये लिया है, तो वो भी पोजिशनिंग से होगा, ठीक है। पोजीशन आप एब्सोल्यूट कर दो फिर कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। बात समझ आई? यस तो सर। फिर इसमें इसने आर्टिकल्स के टुकड़े किए हुए हैं, 1 2 3 4। सो मानो ये मेन है ये सारा, और इसमें ये आर्टिकल्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 को 4 4 16 आर्टिकल्स ने बनाए हैं, और उनको ऐसे रखा है, और बीच में ये मार्जिन डाले हैं ताकि वो दूर दूर दिख रहे हैं, ठीक है। बस में आई? यस सर। सो इसका जैसे आर्टिकल इसका है, जैसे इसने 100 बाई 100 पिक्सल या 50 बाई 50 पिक्सल एक आर्टिकल है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसने बनाए हैं 16 आर्टिकल्स, और फिर नीचे 3 सेक्शंस, और फिर फुटर, और ये सारा जो है ये एक ही में होगा, दैट इज़ द मेन। ये सारा किस में होगा? मेन। तो शो समझिए वहाँ, यस सर। ये करना है ना आपको, ये करना है ये, इंशाल्लाह। हाँ यू हैव टू डू इट। उससे आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। देखो ये सारा मेन है, तेम तथ ना बॉर्डर दितमुत ना दितमुत तथ एम बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये वरना मेन है। मेन के अंदर ये आर्टिकल टैग्स हैं, ठीक। अब मतलब 50 या कितना आएगा उस हिसाब से इसने 16 दिए हुए हैं, ठीक है। और इनको फिर बॉर्डर आपस में ना ये रखा है, क्या बोलते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर रखा है आर्टिकल्स को, और बॉर्डर शोल्डर कुछ नहीं दिया है, और मार्जिन से इसको ये जगह बची है, सिर्फ 20 पिक्सल मार्जिन दिया है हर एक को, तो 20 पिक्सल सबको लग जाएगा, ये दूर दूर भागेगा। फिर इसको पोजीशनिंग करके
क्योंकि ये यहाँ लाना है, दूसरा यहाँ लाना है, तीसरा यहाँ लाना है। सो पोजीशनिंग करें, आप फ्लोट करें, इस्तेमाल, ये सब चीज़ें जितनी भी हमने चीज़ें सीखी उनको इस्तेमाल करके इसको ऐसे बनाएं। और ये वाला आपके सेक्शंस है, ये आपके सेक्शंस हैं। तो फिर 3 सेक्शंस है, उनकी हाइट बराबर होगी, विड्थ बराबर होगी जितनी इसकी है, यानी कि ये यहाँ तक होगा आपका मेन आपको पूरा नीचे तक होगा, और ये फिर लास्ट में फुटर। गॉट इट। और Yes, यहाँ sir. देखो आपने जो साइड बार है वो नीचे लाया है, हेडर यहाँ पे लाया है, ये हेडर की विड्थ कम रखी है, और ये फिर बॉडी है और ये फुटर है। सिंपल। ये आपका नैव या आपका नैव टैग या कुछ आप लिखो, हेडर टैग ही लिखो इसको। ये यहाँ पे जो है आपका, इसमें ये नैव टैग आ गया, ये यहाँ पे आ गया, या ये हेडर है ओनली, और ये वाला जो है ये आपका मेन टैग है। ठीक है, ये मेन एरिया है आपका, मेन से करो खड़ा, ये असाइड हो गया आपका। और यहाँ पे ये आपका एक सेक्शन, एक आर्टिकल हो गया, और एक सेक्शन ये हो गया। ये इतना बड़ा रखना है, ये इतना बड़ा है, इसके ऊपर आना चाहिए और ये साइड में आना चाहिए, यूजिंग द पोजीशन एब्सोल्यूट, यूजिंग द पोजीशन व्हाट, Absolute. एब्सोल्यूट। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको कीजिएगा आप, एंड होपफुली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो बता रहा हूँ असाइनमेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर ये हम तक है कि हम कितना ले ले एक पेज की लेंथ या विड्थ? नहीं आप कुछ भी दे सकते हो, उसके स्क्रॉल डाउन पर सुनिए तो इधर से खुश करी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे वेस कोड कहाँ गया, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैंने इंडेक्स का गया, इंडेक्स HTML, हाँ नहीं इसमें ना स्टाइल में जो मेरा आर्टिकल है ना, जो मेरा मेन है, मेन टैग आपने 400 नहीं, आपने फ़र्ज़ कीजिए इसमें 800 रखा। ठीक है ना, डबल। नाउ इफ आई सी इट, ये उतना बोन, Yes, sir. जितना आप लंबा रखोगे उतना नीचे जाएगा। वजन था हमारा 800, क्या वजन था वहाँ 1800। ठीक है, तो ये कैसे फुटर गच वाले बोन स्क्रॉल डाउन। इट्स योर चॉइस कि आप कितना रखोगे। इट विल गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज। एनी क्वेश्चंस? अस्सलामुअलैकुम सर, ये अपलोड कर देना। यस, एनी क्वेश्चन? नो सर मेरा आज तक जो मिस हुआ है कोड मुझे चाहिए था सब। क्या? सर जो आपने पढ़ा है इनको परसों से। वो तो प्लेलिस्ट हमने फिलहाल किया है ना, वो प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया, उसमें सारे वीडियोस हैं। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। मैं फिर से शेयर करूँगा वो। ओके, अल्लाह हाफिज। सलाम। इससे लास्ट में